Okay. So once again, good morning. So this session is about interview preparation. Before we start the session, I would like to introduce myself. My name is Parvez Khan, and I am a psychology counselor, NLP practitioner, a corporate trainer, and communication coach. At present, I am teaching in a college where I have my subject communication skill. I have conducted my training workshops all over India, from Haryana to Chennai, and more than 200 personality development. We call it personality development, but we call it process training for students, for working officials, for business professional, for teachers, for students. More than 200 workshops I have conducted, and everywhere I found the same lacking, and that lacking is communication skill. I have conducted my training workshops in more than 120 colleges. 120 colleges, and out of 120, 90 colleges I conducted are engineering colleges. And out of 100%, 95% students have the same problem: lack of communication. So in this session, we'll talk about interview. Okay? Because for last 8 years I have been conducting interviews. I have conducted interviews for various fields, for banking, for power, for teaching, and बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स के लिए मैंने इंटरव्यूज लिए. उससे पहले मैंने खुद कई इंटरव्यू दिए हैं, क्योंकि इंटरव्यू लेने के लिए इंटरव्यू देना ज़रूरी होता है. ठीक है. So before entering into this training industry, I work with many corporate companies like Nokia, Samsung, Wockhardt. I work in the share market also. So almost I have appeared for interviews more than 20 to 25 times. And out of that I have gained the experience that what is the requirement of interview. Then I started conducting this kind of interviews. With this institute, I have been associated for last 2-3 years, and I myself feel very fortunate that I am addressing to the students of one of the most reputed institute in Aurangabad. Because जितने यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं सब जगह जाकर आया हूँ, बट शुभम सर्स अकेडमी वन ऑफ द फाइनेस्ट वन. मीन्स दे डोंट कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी. ये दिस इज माई एक्सपीरियंस. आप लोगों का नहीं पता मुझे, बट दिस इज माई एक्सपीरियंस. ठीक है. चलिए, सो टुडे विल टॉक अबाउट इंटरव्यूज. ओके. अब इसमें हम करेंगे क्या, थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में हम जानेंगे, व्हाट इज इंटरव्यू. ठीक है. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो मैंने आप लोगों के इंटरव्यूज़ लिए वो फीडबैक में यहाँ फिर दोहराने वाला हूँ. डरो नहीं, नाम नहीं लूँगा. ठीक है. बट जो मैंने ऑब्जर्व किया है, क्योंकि ये सेशन की ज़रूरत नहीं थी, मैंने मैम को रिक्वेस्ट किया. मैंने कहा कि कुछ ऐसी बातें हैं जो सब में कॉमन है, कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स है जो बहुत कॉमन है. तो हर एक को इंडिविजुअली बोलने की बजाय हम एक सेशन रखते हैं और उस सेशन में एक साथ उसको डिस्कस करते हैं. ठीक है. तो उसी पर्पज से हमने ये सेशन को यहाँ रखा है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. So first of all, we'll see what is interview. Can you tell me what is interview? Yes. Can anyone tell me what is interview? What is interview? Yes, you can say anything. You know, there is no right and wrong question answer. You know, you can answer according to your experience. आपको क्या लगा
क्या है इंटरव्यू? हाँ, यस प्लीज। One-on-one conversation where interviewer is judging your confidence and personality. ओके, वेरी गुड, सिट डाउन। अगेन, जैसे लाइफ के बारे में पूछते हैं ना, व्हाट इज लाइफ, हर एक का अपना अपना डेफिनेशन होता है ना। कोई कहता है माई पेरेंट्स इज माई लाइफ, माई फ्रेंड्स आर माई लाइफ, है ना। किसी की कुछ होती है, किसी की कुछ होती है। तो इंटरव्यू का भी वैसे ही है, इंटरव्यू का कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। देयरफॉर आई एम आस्किंग यू, आपको क्या लगता है इंटरव्यू क्या है? यस, बिकॉज आप इंटरव्यू को जो समझते हो, इंटरव्यू वैसा ही है आपके लिए। जैसा अगर कोई समझता है इंटरव्यू तो फिर इंटरव्यू उसके लिए वैसा ही है। और कोई कहता है वाओ इंटरव्यू, उसके लिए इंटरव्यू वैसा ही है नहीं है? वैसा ही है ना। यानी जैसा भाई फॉर एग्जांपल, आप अगर शोएब अख्तर को फेस कर रहे हो तो आप बोले शोएब अख्तर 2 हेलमेट ला दो। और अगर सचिन तेंदुलकर फेस करेगा तो वाओ शोएब अख्तर है, डिफरेंस है, ठीक है। क्यों? तो वो प्रिपेयर्ड है, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड, ठीक है, ये डिफरेंस है। तो देयरफॉर आई एम आस्किंग व्हाट इज इंटरव्यू। व्हाट आई ऑलवेज से अबाउट इंटरव्यू, प्रोफेशनल लाइफ का सबसे बड़ा एग्जाम, प्रोफेशनल लाइफ का, ठीक है। वैसे तो एग्जाम बहुत देते हैं हम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 10th पास किया, 11th पास किया, 12th, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, यानी हर बार एग्जाम दे रहे हो, लेकिन कोई बहुत बड़ा चेंज है क्या? यानी कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है? नहीं है, एक क्लास से दूसरी क्लास, ठीक है। और इसके आगे, अब इसके आगे आपने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली, लोअर लेवल से हायर लेवल, है ना। ये कंपनी से वो कंपनी, वो कंपनी से वो कंपनी, यानी बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने वाला, ना इससे पहले हुआ ना इसके बाद होगा। ये कितना बड़ा ट्रांजिशन, आप याद रखिए कि यू आर मीन्स फ्रॉम अ स्टूडेंट्स लाइफ एंटरिंग इनटू अ प्रोफेशनल्स लाइफ। अभी तक आप डिपेंडेंट थे, आप इंडिपेंडेंट, है ना। अभी तक आपकी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं पेरेंट्स की आइडेंटिटी से एसोसिएटेड थी। नाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट योर ओन आइडेंटिटी। है नहीं, लाइफ का सबसे बड़ा एग्जाम, सबसे बड़ा एग्जाम है, यानी सबसे ज़्यादा चेंजेस यहीं पर है। और उसके बहुत सारे रीजंस भी है। अब ये एग्ज़ाम क्या करता है, अगर आपने छोटी मोटी कंपनी में इंटरव्यू दिया तो छोटा मोटा पैकेज, छोटी मोटी पोजीशन, छोटे मोटे ग्रोथ, है ना, और इंटरव्यू भी इजी होता है। लेकिन अगर बड़ा पैकेज, बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़ा ग्रोथ, तो फिर इंटरव्यू कैसे इजी होगा? तो यहाँ 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट करने को तैयार है, दूसरे वो अपन अपनी औकात के हिसाब से। अब होता क्या है, जब आपने छोटा इंटरव्यू फेस किया, छोटी कंपनी में, छोटी प्रोफाइल, छोटा पैकेज, वहाँ आपको जो भी है 20-25 हज़ार रुपये से सैलरी शुरू हो गई, लेकिन वहाँ डायरेक्ट 50 से शुरू होती। अब मुझे बताओ, ये 25 वाले को 50 होने को कितना टाइम लगता? कम से कम 3-4 साल, 5 साल लग जाएंगे उसको। तो आप 5 साल वेट करने के बजाय इंटरव्यू को थोड़ा टाइम दो ना। अरे भाई, आप टारगेट बड़ा करो, समझ लो, टारगेट बड़ा, यानी ये 25 वाला टारगेट नहीं करना, मेरे को 50 वाला टारगेट करना। क्योंकि अगर 25 की लग गई तो 50 जाने को 4 साल लग जाएंगे आपको। तो डायरेक्ट 50, ठीक है। अब उसके लिए फिर इंटरव्यू, क्योंकि हमारे पास जो एजुकेशनल लेवल्स है वो फिक्स है ना। तो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एमफिल, पीएचडी, दैट्स इट। उसके आगे है कुछ भी नहीं है। इंटरव्यू में ऐसे कोई मीन्स रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि भाई तू ग्रेजुएट है तो तू सिर्फ 25 की ट्राई कर, 50 को नहीं आ सकता, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मिनिमम ग्रेजुएशन है, ठीक है। तो यहाँ पे बोलने का मतलब ये कि आपने अगर ग्रेजुएशन कर लिया है, उसके बाद स्काई इज द लिमिट। आप जाओ, आप जहाँ जाना है, तो आपको कोई रोक नहीं रहा है, सिर्फ आप रोक रहे हो अपने आप। हो रहा है ये, हम खुद अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, नहीं वो नहीं, ये वाली, ये आरआरबी होता है ना। सो यहाँ जरूरी है कि अकॉर्डिंग टू मी इंटरव्यू इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन ऑफ योर करियर।
Yes. So interview. We will break it. Inter, you know, it is a prefix in English language. Inter. Inter का मतलब क्या होता है? Between two. जैसे होता है ना इंटर कॉलेज कंपटीशन, इंटरनेशनल मैच, तो इंटर का मतलब क्या है यहाँ पर? Between two. And view. What is view? सोच, विचार, ओपिनियन है. So ultimately what is interview? It is a process of sharing information between two. That's it. इससे ज़्यादा है क्या? कुछ बताओ मुझे. Interview is a process of sharing information between two people. Okay? तो फिर इसका इतना स्ट्रेस क्यों? पसीने आ रहे है ना, बिल्कुल रोनी जैसी सूरत हो जा रही, कोई तो जा ही नहीं रहा, मैं नहीं जाता भाई है ना. I'll share my experience. One of my student, he lived in नागपुर, वो नागपुर में रहता था, ठीक है. उसको एक जॉब अपॉर्चुनिटी आई बैंगलोर से, ठीक है. घर वालों ने फ्लाइट से भेजा उसको, है ना. वो सब तैयार होके, सब नए कपड़े, सब नए लेके, ये वो फ्लाइट से बैंगलोर भी पहुंचा. लेकिन जब उसने देखा जहाँ पर इंटरव्यू है, जिस बिल्डिंग में, वो बिल्डिंग देख के वापस आ गया. ठीक है, उसने गेस कर लिया बिल्डिंग ऐसी है, कैबिन कैसा होगा और इंटरव्यू लेने वाला कैसा होगा. तो नागपुर से बेंगलोर तक तो गया वो, उस बिल्डिंग तक भी पहुंचा, लेकिन बिल्डिंग के बाहर से वापस. उसने क्या समझ लिया इंटरव्यू को? अगर वो ये समझता तो क्या वापस आता? तो उसने कुछ और ही समझ लिया, है ना, कि वहाँ पे जिले इलाई बैठे हैं और बोलेंगे गर्दन नीचे कर और मार देंगे, यही समझा होगा. सो इंटरव्यू, इफ यू रिमेंबर दिस, इंटरव्यू इज अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन टू. ओके, नाउ वन मोर थिंग. जैसे हमने कहा इंटरव्यू एक एग्जाम है, एक असेसमेंट है. ओके, तो किस चीज़ का असेसमेंट है? किस चीज़ का असेसमेंट? सबसे पहले आप जो आपका रिटर्न देते हो, सो असेसमेंट ऑफ नॉलेज, ठीक है, क्लियर हो गया. देन यू गो फॉर फाइनल इंटरव्यू. अब किस चीज़ का इंटरव्यू? अब किस चीज़ का असेसमेंट है? नाउ इट इज द असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी. यानी अगर पीआई असेसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन होता तो फिर वो रिटर्न क्यों लिया? इसका मतलब असेसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया, अब असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी. तो पर्सनालिटी में क्या क्या आता है? क्या आता है? हम पर्सनालिटी बोले तो ऐसा देखते हैं, हाँ ये भी पर्सनालिटी है, लेकिन यही पर्सनालिटी नहीं है ना. पर्सनालिटी फिजिकल अपीयरेंस भी होता है, और पर्सनालिटी ये होता है हाउ डू यू बिहेव. दैट्स इट. सिंपली आई एम सेइंग, व्हाट इज पर्सनालिटी? हाउ डू यू बिहेव. ठीक है, अब इसमें इसके पीछे बैकग्राउंड बहुत बड़ा है. एक वर्ड में मैंने बोल दिया आपको कि व्हाट इज पर्सनालिटी, हाउ डू यू बिहेव इंडिकेट्स योर पर्सनालिटी. बट ये बिहेवियर के पीछे बहुत कुछ है, बहुत कुछ है ना. इसमें आपका थिंकिंग पैटर्न है, हाउ डू यू फील है, ठीक है, हाउ डू यू टेक डिसीजन है, ओके, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड है, हाउ डू यू लिसन है, ठीक है, हाउ डू यू एनालाइज अ सिचुएशन है, ठीक है, एंड हाउ डू यू एक्सप्रेस योर सेल्फ. ये सब है उसके पीछे. किसके पीछे? बिहेवियर के पीछे. अब बिहेवियर है क्या? सो सिंपली बिहेवियर इज द रिजल्ट ऑफ योर थिंकिंग एंड योर फीलिंग. दैट्स इट. बिहेवियर दूसरे व्यक्ति के लिए बहुत कुछ हो सकता है. जैसा मेरा बिहेवियर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू कैन सी माई बिहेवियर, बट कैन यू सी माई थिंकिंग? Can you see my feeling? So for you, my behavior is very important. But for me, my behavior is just a result of my thinking and my feeling. That's it.
I should not focus much more on my behavior. I should take care of my thinking and my feeling. Automatically, my thinking and my feeling will take care of my behavior. Because कभी भी आपका behavior आपके feeling के against नहीं होता है क्या? जैसे मिसाल के तौर पे आपको किसी ने गाली दी और आप बहुत खुशी, क्या बात है, ऐसे हुआ कभी? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उसके गाली देते ही आपने अपने आप को कहा, मुझे ऐसे बोल दिया। सोचा ना आपने, मुझे ऐसे बोल दिया, उसकी हिम्मत कैसे हुई? और तभी आपके फीलिंग्स, एंग्री फीलिंग्स जनरेट हो गए। किसी के एंग्री, किसी के सैड, वो अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से एक सिचुएशन में लोग कई तरह के फीलिंग जनरेट कर सकते हैं। उसने गाली दी, किसी को गुस्सा आ सकता है, किसी को सैड फील हो सकता है, किसी को एम्बैरस फील हो सकता है। देखिए फीलिंग अलग अलग हो सकती है। एक्सटर्नल एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो इंटरनल फीलिंग्स है सबके अलग होंगे। उसने गाली दी, किसी को गुस्सा आएगा, किसी को सैड होगा, किसी को एम्बैरस फील होगा, और जिसके जैसे फीलिंग होंगे उसका वैसा एक्शन होगा। मिसाल के तौर पे जिसको गुस्सा आया वो पलटाकर गाली देगा, और जिसको सैड फील हुआ नीचे मुंडी डालकर रोएगा, होगा, और जिसको एम्बैरस फील हुआ सूरत उतार के बैठ जाएगा। एक्सटर्नल फैक्टर तो सेम है ना, फिर इसका तीनों का रिस्पॉन्ड क्यों अलग है? बिकॉज ऑफ फीलिंग, जैसी फीलिंग वैसा रिस्पॉन्ड, दैट्स इट। ठीक है, वहीं पे तारीफ, अगर मैं आपकी तारीफ कर दूं, अब किसी ने आपकी तारीफ की, आपने कहा क्या बात है, क्या लग रहा है, देखो आप लोगों को सीरियस ले लिया। डायरेक्ट यहां हिट होता है, मुझे बोला मैं सही, इसने इसको रिपोर्ट किया, खुश हो जा बेटा, खुश हो जा, अच्छा बोला, खुश हो जा। तो यहाँ फीलिंग, हैप्पी फीलिंग। ठीक है, अब यहाँ पर भी डिपेंड करता है कि कौन कितना खुश हुआ। कोई बहुत नॉर्मल खुश होगा और बोलेगा थैंक यू, दैट्स इट। कोई बोलेगा क्या बात कर रहे हैं, होगा ना। किसी के खुशी के आंसू निकल हो सकता है डिफरेंस। एक्सटर्नल फैक्टर सेम है, इंटरनल डिफरेंस है। अभी इंटरनल डिफरेंस क्यों होता है? सो एनएलपी में एक कंसेप्ट है, उसको कहते हैं इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। इंटरनल रिप्रेजेंटेशन कि बाहर कुछ भी हो, हम उसको अपने माइंड में लाने के बाद उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वही फीलिंग चेंज करता है, दैट्स इट। ठीक है, यानी अगर आप ये कहो कि एक्सटर्नल फैक्टर में इतनी ताकत है कि वो जो चाहे मेरे से करवा लेगा, नहीं। आपका खुद का जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है, आप उस इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करते हो, वो डिसाइड करेगा आपकी फीलिंग और आपका एक्शन। ठीक है, तो उसको आईआर हम कहते हैं एनएलपी के लैंग्वेज में, आईआर। अब ये आईआर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। जैसे मिसाल के तौर पे किसी को अचानक कहा परसों तेरा इंटरव्यू है, मैंने बात कर लिया, कैसे, क्या इतनी जल्दी है? वही दूसरा क्या बात कर रहा है, सही, थैंक यू। व्हाट इज दिस? इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। उसने एक ही बात कही, लेकिन दोनों ने अलग अलग रिप्रेजेंट किया। एक ने उसको थ्रेट के तौर पे लिया, दूसरे ने उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया। और जो जैसा रिप्रेजेंट करेगा अंदर, उसका बिहेवियर वैसा आएगा। सो इंटरव्यू इज अ प्रोसेस ऑफ असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, तो पर्सनालिटी में मैंने कहा ना कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो कई चीज़ों से मिलकर बनती है। ठीक है, अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर सेंटर पॉइंट की हम बात करें, सो द सेंटर पॉइंट इज एटीट्यूड, दैट्स इट। ठीक है, बिकॉज आई कंडक्ट सम attitude training, I conduct behavioral training, and one of the famous course is the right attitude। एक कोर्स है मेरा, the right attitude। उसमें हम ये कहते हैं कि एटीट्यूड पॉजिटिव नेगेटिव, हम अक्सर बात करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव।
बट अकॉर्डिंग टू मी एटीट्यूड इज नॉट पॉजिटिव नेगेटिव, आइदर इट इज राइट और रॉन्ग, दैट्स इट, आइदर इट इज राइट और रॉन्ग, ठीक है। राइट कब, जब मुझे उससे हेल्प मिले तो राइट है, और अगर उससे मुझे नुकसान मिले तो रॉन्ग है, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पे हमको अक्सर कहा जाता है पॉजिटिव पॉजिटिव बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव, हर जगह बी पॉजिटिव होना पॉसिबल नहीं है ना। सामने बड़ा टाइगर आ गया और आपका चालू हो गया संदीप माहेश्वरी का, डरता क्या है तू योद्धा है, तू जीतने के लिए पैदा हुआ है, और टाइगर खड़ा है साहब। अब मुझे बताओ ये योद्धा बचेगा? वहां उसको नेगेटिव होना ही पड़ेगा। तो एटीट्यूड इज नॉट पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इट इज आइदर राइट और रॉन्ग। यहाँ भागना उसके लिए पॉजिटिव है, ये भागना पॉजिटिव है, ठीक है। हाँ, लेकिन इंटरव्यू को जाना है, और अगर आप कहते हो इंटरव्यू, ये भी नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ आपको एक्साइटमेंट चाहिए, इंटरव्यू के लिए एक्साइटमेंट, और टाइगर के सामने डरना है आपको, ठीक है। सो एटीट्यूड आपका जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं कहता हूँ ना, एटीट्यूड पे काम करो। यू नो व्हाट इज एटीट्यूड? योर सेंट्रल ऑपरेटिंग सिस्टम है वो, सेंट्रल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसा कंप्यूटर में होता है। कंप्यूटर में आपको स्क्रीन दिख रही, कीबोर्ड दिख रहा, माउस दिख रहा है ना, आपका सीपीयू कहाँ रखा है दिख ही नहीं रहा, बट पूरा सिस्टम कौन चला रहा? सीपीयू चला रहा। उसी तरह आपकी हेल्थ दिख रही है, आपका फेस दिख रहा, हर चीज़ दिखाई दे रही है आपकी, आपका ड्रेस बहुत अच्छा है, बट आपको चला कौन रहा है? एटीट्यूड, ठीक है। अब एटीट्यूड की एक बहुत लंबी कहानी है, हम उसमें नहीं जाते, बट व्हाट आई एम सेइंग, आपका एटीट्यूड ही आपसे कुछ भी करवाता है, ठीक है। यानी होता है क्या है मालूम, हमारा एटीट्यूड कई सालों में फॉर्म हुआ, जैसे आज आपका जो एटीट्यूड है ये कई सालों का नतीजा ही है, ऐसा रातों रात नहीं बदलता है, 2-4 महीने में भी नहीं बदलता है, ये कई सालों का नतीजा है। आज आप जैसा भी बिहेव करते हो ये कई सालों का नतीजा है। आप एक ऑटो पायलट मोड में आ चुके हो, यू नो ऑटो पायलट मोड। ऑटो पायलट मोड मीन्स एक इंसान, उसका किसी भी सिचुएशन को रिस्पॉन्स फिक्स है, किसी भी सिचुएशन को उसके रिस्पॉन्स फिक्स है उसका। ऐसा हुआ तो ऐसे बिहेव कर लूंगा, ऐसा हुआ तो ऐसे बिहेव कर लूंगा, बुरा बोला तो रो दूंगा, अच्छा बोला तो हंस दूंगा। ऑटो पायलट मोड इसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोशिश ये करना है ऑटो पायलट मोड से बाहर आना है, ठीक है, क्योंकि सिचुएशंस, हर बार सिचुएशन की डिमांड अलग अलग ही होगी आपकी, ठीक है। अब यहाँ पर हम इंटरव्यू के बारे में और थोड़ा डिटेल में ये जानते हैं कि इंटरव्यू इज द असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है। अब ये देखना है कि why it is conducted, the very basic question, why interview is conducted? To match the requirements, that's it। इंटरव्यू के लिए जाते हैं टू मैच द रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब अगर बैंक की रिक्वायरमेंट बैंकिंग नॉलेज है, अगर बैंक की रिक्वायरमेंट सिर्फ बैंकिंग नॉलेज है, तो आपके रिटर्न टेस्ट के बिना पर ही हो जाएगा डिसीजन, तो हो जाएगा ना। जैसा बैंक को 10 कैंडिडेट चाहिए, 100 लोगों का रिटर्न टेस्ट लिया, टॉप 10 निकाल लो, टॉप 10 निकाल लो। अगर इंटरव्यू बैंक की रिक्वायरमेंट सिर्फ नॉलेज है तो रिटर्न में ही फैसला हो गया, फिर पीआई क्यों लिया? इसका मतलब सिर्फ बैंकिंग नॉलेज काफी नहीं है, ठीक है। यानी बैंक की जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ नॉलेज नहीं है, वो है आपकी पूरी पर्सनालिटी। अब पर्सनालिटी में जैसे मैंने कहा ना कि आपकी थिंकिंग, आपका बिहेवियर, आपकी एक्सप्रेशंस, आपकी चॉइसेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं, ठीक है। अब इसमें ये तो बैंक की रिक्वायरमेंट है, मेरी क्या कैंडिडेट की भी रिक्वायरमेंट है ना। यानी हम भूल जाते हैं कि मैं इंटरव्यू क्यों जा रहा हूँ, सिर्फ ये याद होता उन्होंने बुलाया इसलिए जा रहे है ना। यानी हमको उनकी रिक्वायरमेंट याद रहती, अपनी भूल जाते। भाई तुमको क्यों जाना है? कोई ज़बरदस्ती है क्या? कोई बंदूक लेकर खड़ा था, जाने तो गोली मार दूंगा, ऐसा है? यानी आप खुद याद करो
जब भी इंटरव्यू की बात आती है, आप अपनी रिक्वायरमेंट याद रखते हो क्या? उनकी पूरी याद है, ऐसा ड्रेस पहनना है, ऐसे शूज़ पहनना है, बाल ऐसे होने चाहिए, टाई ऐसी होनी चाहिए, ये पेपर वो पेपर सब। मैं क्यों जा रहा हूँ भाई, मैं क्यों जा रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए इंटरव्यू से? भूलते नहीं भूलते आप? इक्वली आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देना है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है और मेरी क्या रिक्वायरमेंट है। जब आपको ये दोनों याद रहेगा, बिलीव मी, आपका कॉन्फिडेंस मेंटेन रहेगा, है ना? क्योंकि वो अगर मुझे सैलरी देंगे तो मैं भी तो अपना टाइम दूंगा, मैं भी तो अपनी मीन्स अपना इंटेलिजेंस दूंगा, अपनी क्रिएटिविटी दिखाऊंगा, मैं भी तो उनको सपोर्ट करूंगा, उनका सिस्टम रन करने में। फ्री में सैलरी देगा, ये भूल जाते हैं हम। और जब ये भूल जाते तो फिर वही मैं बोला ना, वो पुराने राजा महाराजा के ज़माने में जाते, ऐसा लगता हो महाराज खड़े हैं, है ना, और आप जाके खड़े हो, जो हुक्म मेरे आका। यहाँ दोनों महाराज है, आप भी महाराज हो, वो भी महाराज है ना, दो राज्य के दो राजा मिल रहे हैं और अब दोनों की डिस्कशन चल रही है, तुम मुझे क्या दोगे, बोला तुम मुझे क्या दोगे। ये फीलिंग आती नहीं है, आना चाहिए, ये फीलिंग आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। क्योंकि अब अक्सर तो ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी है कि जो इंटरव्यू ले रहे बेचारे वो भी एम्प्लॉई है, जो इंटरव्यू ले रहे वो भी तो एम्प्लॉईज है ना, तो फिर दोनों महाराज हुए ना। सो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखना है, वाई इंटरव्यू, मैचिंग द रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो अपनी रिक्वायरमेंट ज़्यादातर आप याद रखो। देखिए उनकी रिक्वायरमेंट तो सब पता है हमको क्या क्या है ना, ऐसा होना चाहिए ऐसा। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, आई वॉन्ट अ ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन ग्रो, I want an organization where I can make lot of money. I want an organization which is reputed, established,